Good afternoon, friends. All the participants. Welcome, CA Kavita Madam, Vanda Madam, JP Sahab, D Sahab, and all participants. I, CA Daman D. Purohit, on behalf of SGF, of study group for acquaintance and fellowship. Ever Chai Pe Charcha, it's a session going on for the special subject MSME, applicable to the auditors as well as the accountants for company, but applicable from the April 2020. So Kavita Madam will be our speaker, and CA Vanda Madam will be the moderator, and will discuss Chai Pe Charcha, kya baat to usme miss karni hai, what are the questions she will be taking up. I would like to introduce SGF, which is our concern since started our this group, study group, in 2018 with about 40 members and well going on with physically, but due to some COVID special restrictions, so we started with Vanda Madam that we should start with online basis. So Zoom's program will started, and about 4 lectures has been on. So Vanda Madam and Kavita Madam both are well known in their profession, our CA professions, and it is a memorable day for them that in the book Swing, which is called The Stories of Women CA Inspiring New Generation, और 8 मार्च को वो लॉन्च हुआ थी, पब्लिश हुआ था बुक, इसमें दोनों का लाइव स्टोरी पब्लिश हुआ है, कविता मैडम एज वेल एज वंदना मैडम का, और इट इज अवर प्राउड मोमेंट फॉर के बोथ आर विथ अस एंड विल लिसन कविता मैडम. Now I request JP Tiwari sir to introduce formally our this speaker, CA Kavita Loya madam, as well as moderator Vanda Dodia madam. And I request Jayaprakash Tiwari to carry on. Thank you. JP, your audio is not coming. Audible? Am I audible? Yes. Yeah. તમારો અવાજ નથી આવતો. Yeah. So, well now. JP can't hear you. What happened? Unmute करो हमें. Nearby આવી જાઓ જરા. नहीं, we can't hear. Actually, you can use the earphones. Maybe by earphones it will be easier. Headphones डाल के देखिए. So basically, Swing is the stories of women inspiring new generation, and it is all over India. से हमने shortlist की these stories. 35 women stories have been published on 8th March 2020, Women's International Day. We were so lucky. I went to Pimpri Chinchwad, and I think 30 females also were present that day, right? Oh,
not mistaken. Yeah, it was हाँ, 30-32 just before the lockdown. एक Anuradha was not there. She's from Hong Kong, and 2 or 3 more. Das. हाँ, बाकी सब आए थे. So that was before COVID. This was an achievement. You know, that was the first live thing we could do. I think it was the last travel of mine after the True. COVID. So that's how it was. And everybody had a almost same struggle. बोलेंगे तो या तो financial था, या तो technical था, या तो कुछ भी था. But उन 35 लोगों का एक ही attitude था, never give up. तो life के यही है कि बस आपने खुद को मान लिया, तभी हार होती है, तब तक हार नहीं होती है. So it's up to you how you actually want to take up your life. So most of the people say कि attitude what that matters, you know. So जब तक जेपी आते हैं, मैंने ये ब्रीच का टाइम ले लिया मोटिवेशन. Feelings. I think now he is all set. He's entering through some other medium also. So I think उन्होंने 2 लॉगिन किया है. I can see Shefali. शेफाली Of has course. Hello, Shefali, long time. also is one of the swinger, right? Yeah. Yeah. So we are lucky today. We have 3 swingers on a same platform. Oh, wow. So, Shefali, we would like to add up. You have 1 minute to say before the technical things are. Kavita, how are you? Very, very fine. Enjoying Actually, the lockdown. Vandana wanted me to do the introduction part today, and she told me the same thing. Ki we 3 are the swingers, so it will be like, you know, Combo. this thing, coordination between all 3 swingers. Wow. Yeah. But unfortunately, thoda, like, you know, I had some prior commitments, so I could You not. are Facebook Live, dear. Thank you. So, JP, are you ready? Sorry, am I audible now? Yes, Very, yes. very fine. You are Yeah, audible. extremely sorry. Extremely sorry. Technical hitches always there. Don't worry. और आप बिलीव नहीं करोगी कविता, 2 मिनट पहले हमने जब वो आए तो हमने चेक भी कर लिया था. The IT as convenient as last minute hitches are the one of the. It has its own role. Yeah. So let us start. Extremely sorry, and thank you, Daman bhai. Pardon? તમારો વિડિયો એક બે છે ને એમાંથી એકમાં વિડિયો ચાલુ રાખો ને પ્લીઝ. વિડિયો બંનેમાં ઓફ છે. અમને ખાલી ગણપતિ ભગવાન દેખાય છે. ઇન એની કેસ ગણપતિ Sorry. બાપા મોર્યા आता पुढे काही संकट नको असू दे. So thank you, Daman bhai, for giving me this great opportunity for to introduce the great this today. Kavita Loya is a partner in Loya Bagri and Company, Nagpur. She is practicing since 2001 in the field of statutory audit, management audit, and concurrent audits. She is also an independent director in a public company. She is a member of core group of Bombay Chartered Accountants Society. She is past chairperson of Nagpur branch of the Institute of Chartered Accountants of India. Under her leadership, the branch was recipient of the highly commendable branch of India and also recipient of the best branch of WICA, a student body. She was a member of Capacity Building Committee and Women's Empowerment Committee of Western Region of ICAI, Mumbai and Nagpur. She is former visiting faculty at Regional Training Institute of Income Tax Department and NADT with specific interest in financial management and accounting standards. Also part of Unnati program, Ambedkar College, giving lectures on taxation.
She is regularly contributing lectures in personality development fellowship program organized by Rotary Club of Nagpur. And as usual, leaders are readers. Her hobby is reading, painting, and traveling. So let us welcome the great leader of today, Kavita Loya. Thank you, Please. Jayprakash ji. Thank you very much. Please welcome, madam. Thank you. Welcome, Kavita. And let me introduce to again a great personality, Vandana Dodia, with full of life and energy. Yes, that's true. So always smiling, happy and positive thinker and motivational speaker. She qualified CA in 1998. She has done LLB from KC College, diploma in ISA, and her journey of learning is still on, as she recently qualified forensic audit and fraud detection certification course of our ICI and qualified independent director course managed by Indian Institute of Corporate Affairs. She is tally evangelist and motivational speaker. In span of last 12 years, she served the CA profession as co-opted and group subgroup members of various committees of WIRC. Presently, she is subgroup member of Management Accounting Committee of WIRC for 2021, where she actively coordinated for e-publication of book on virtual CFO services. She is committee member of coaching class committee of GSTPAM. She is advisory group member of Borivali City Study Circle, having more than 1700 members, where she served as convener for 5 years. She has started women's wing of BCSC and SGAF. She is life member of various professional associations like AIFTP, GSTPM, BCA, CTC, MCTC, and lot many more. She has addressed more than 100 study circle meetings and workshops on various platforms, including WIRC. She is an important social contributor and a very good singer. She has founded International Fellowship of Rotarian Musician Chapter in 2017, and now she is treasurer of the same. She is vice president of Rotary Club of Borivali for 21-22. She served various organizations like Harmony Music Club, Borivali Junior Chamber, HVO Students Associations, etc. on various posts. So please welcome energetic Vandana Dodia. Thank you, JP. We always try to cut short. 3 pagers, we made a 1 pager, Thank you very much. But ultimately, what makes your biodata work? I will take only 30 seconds more because participant is eagerly waiting to listen to Kavita, right? Kavita is today's बैच मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमें अपने आप you should be living your legacy. So for that you need to work on that. So why Kavita is called as a speaker, why Vandana is there, why JP is there, or anyone coming here, why we all are here is that whatever contribution we can do to the profession, we have to do our bit. And slowly it becomes your biodata, as simple as that. So coming to today is a very interesting topic. So now IT side is not working. So let's start doing audit. That's what we thought. So
while doing 2021 audit, data has started flowing, you know. So Kavita said, "Ki Vandana, are you aware accounting standards were applicable to MSME ICI announced in March 21? So what was that announcement? Can you tell us?" Over to you, Kavita. Good evening, everyone, and thanks, Vandana, for calling me in this forum. It's very interesting and a very good, I think, a very good work that you're doing of making everybody aware. Awareness is the key to our profession, of course. And as far as these announcements are concerned, yes, on I think 31st of March, the institute announced that MSME, the accounting standards which are applicable to MSME. So now this now, and they will be applicable from April 20. So the audit now, which the period which we are going to be auditing now, so all this will be applicable to all the MSMEs. Now what have they done is, in this announcement, they have divided the announcement in basically two parts. I mean, not divided, basically the appointment, the announcement is about two parts. One is that they have redefined the criteria for MSME. You know? So they have divided the whole what do you call, the levels. They have characterize the non-corporate entities into 4 levels. I'll just share just a minute. I'll just share the screen. Yeah. Can everybody see the screen? No, Kavita, your screen is yet to be Is seen. everybody able to see the screen? No. Now, yes, I guess. Still no. Screen? No. The screen is not being seen? No, Kavita. Yes, now it comes. Open Zoom meeting पे गए क्या आप? But that is Jai Prakash Tiwari's screen. No, yet come. Kavita, Ha, now, yes, now we can see. Is that? Yes, Kavita coming. Accounting standards for MSMEs. आया था चला गया वापस. अब आ रहा है? Yes. Today IT is really playing a game with us. Happens. Okay? Yes, Yeah, now we can see. Is that fine now? Yeah, we Okay, can see. thank you. Okay, so now what happens is they have divided criteria for the non-corporate entities, which are divided into 4 levels. The first level is they are saying that all the big, large entities, that meaning that any who are being listed or about to be listed, or any banking or financial institutions or insurance, any businesses which are doing insurance businesses, and any commercial entity, you know, where there are any industrial or commercial entities where they are having a transaction or a turnover, that is excluding other income, total meaning only turnover is over 250 crores. If you are having a turnover over 250 crores, or your borrowings, any type of borrowings is above 50 crores, then you will be considered as a large entity. Is that clear? So that is the criteria they have given for the large entity. Then they have given the second
just first call question comes when the turnover they say. So turnover medium area is as or anything including below First question 2 feet, but more than 50. The range between anything above 50 crores, but less than. Kavita, हाँ am I audible? हाँ बोल. Can you hear me? My first question was Yes. that when you say 250 crores, that is on a see basically any entity, whether listed or Yeah, now I can hear you. whether listed or unlisted. Secondly, large that turnover will include GST also when you calculate 250 crores. हाँ. Okay. Because generally GST tax No, duty no, tax no, जाता है. no. Turnover is always gross. I mean, excluding GST. It is excluding GST, excluding any other income. It is only the commercial transaction turnover. Okay, okay. Excuse Okay? It is excluding GST and other income. ठीक है. Yeah. Follow the next slide. Okay. And the same goes with L2, but this that is between 50 to 250 and your turnover and your borrowing. And now this 200 this turnover should be immediately preceding your accounting year, and your borrowing, any type of borrowing, including public deposit, it should be any time during the year. See, they have put this any time during the year in this recent amendment, because what happens, people used to borrow and then जैसे ही year end आता था, they used to repay and bring their loan to a lower level. So now what they have done is any time during the year. So that is a very smart change that they have done in this announcement now. And of course, any holding company of these type of entities will also be considered in the same level. There is L3 level, which is considered as Audio not there, Kavita madam. आपने अभी जो बोला ना वो पूरा 2 लाइन हमारे पास पहुंचा ही नहीं. कविता. Our video has got hanged. Yeah, I know anything. There is a see Nagpur maybe bandwidth problems will be there. What I understood from her talk was that they have done the smart move. They have written now at any time during the immediate preceding previous year. So what has happened? What she said, people who used to run away with on 31st March they will remove that loan. Basically. So now government always try to breach whatever UCANA is there. So that was done by inserting that particular line anytime during the previous year. If you are having 50 crores loan outstanding, then you will be covered in the level 2. And the limit after that will be for the level 3. That is our MSME, what we are looking at today. And she has told me that she will be covering on what are the day-to-day important, like traders, जो भी हमारे mid-size client रहते हैं MSME, तो वो वाले standards she will be covering, like आपका inventory valuation रहेगा, accounting policies रहेगा, और जो भी very important के वो हमें हमारे MSME retailer inform करना पड़ेगा कि Hi Vandana. hello. Sorry, today तो आज पता नहीं नेट का कुछ इशू हो गया शायद. Should I share the screen again? Yes ma'am. Yeah, please. एक मिनट ना मैडम. Kavita. Is that okay now? Yeah. We can see you. Yeah. So now level 3, see again, earlier it was small, medium enterprises. Now micro has been introduced into the whole scenario, MSME. So this is the first part of your announcement where they have told you that these are the criteria of entities which they have. Okay. So you need to have 2 crore से लेके 10 crore तक का loan होना चाहिए, borrowings, and then exceeds 10 crore turnover but does not exceed 50 crore in the immediately preceding year. And known company entities which are not covered under level 1, 2 and 3 are considered as level 4 entities. Okay, ma'am. Kavita, next.
Madam, this one query. કવિતાનો અવાજ નથી આવી રહ્યો એટલે ત્યાં બેન્ડવિડ્થ આજે જ ઇશ્યુ છે. હા, લેવલ 3 ની જે કન્ડિશન છે 50 CR 10 to 50 CR and 2 to 10 CR લોન, એ ક્યુમ્યુલેટિવ કન્ડિશન છે એન્ડ છે વચ્ચે કે ઓર છે? આઈધર ઓર છે મારા હિસાબે, જ્યાં સુધી મારું. કવિતા, ધ ટાઈમ વેન યુ વર ઓફ ધ એર, હવે અત્યારે જે છે વિડિયો સ્ટેટિક છે. હા, એટલે એ ક્લેરિફાઈ કરવો પડે. જો હા, નો પ્રોબ્લેમ. હોય તો 2 કરોડની લોન તો કોઈ બી નાના ટ્રેડર ની પણ હોય છે આજકાલ તો they all will fall under level 3. So any of the participant has the knowledge, they can share it. This is a group for discussion. ત્યાં નેટ નો બહુ પ્રોબ્લેમ છે. હા, એટલે ઘણી વાર આ થઈ જાય. You never know. હા, You have to deal with it. તો કોલર ને ઇનફેક્ટ જનરલી છે ને કોઈ પણ તમે સ્ટડી સર્કલ મીટિંગ કરતા હોય ને તો પીપીટી સ્લાઇડ મંગાવી લે. એસજીએફ માં શું થાય છે, પીપીટી આપણે પછી લઈએ છીએ લોકો પાસેથી કે ભાઈ પતી જાય ને સેશન. હા, એટલે હેડ આઈ હેવ બીન તો આપણે થોડું આગળ ડિસ્કશન કન્ટિન્યુ કરી શકત એમ. હા, આપણે પાસે હોત ને તો આપણે સ્ક્રીન શેરિંગ કરીને we can continue. We can continue. No problem. So અંજના છે, ડિમ્પલ છે, કોઈને કઈ કેવું નથી? We have got some time to talk. ચાય पे ચર્ચા, ચાય ચાય चाहिए ચાય चाहिए ચાય चाहिए. ચાય પોતે પોતાનો કપ બનાવવાનો અને અહીંયા આગળ વર્ચ્યુઅલ ચાય તમનભાઈ, તમે ચાય પીધી કે તમારા ઘરે મસ્ત ચાયના કપ છે? ચાય 3 entities. There are 2 limits, one of turnover and one of loan. So both are cumulative condition or either or. Either or. Any Okay, of okay. them. L1 में भी Any. either or है. L1 में तो 4 तो कंडीशन. 2 करोड़ में से तो कोई दो भी आप तो 2 करोड़ से ज्यादा का लोन हुआ, सपोज 2 करोड़ 10 लाख का लोन हुआ, so that entity will become level 3 entity. level 3, yes. Any time during the year. It's not कि balance sheet date पे नहीं. 31st March ऐसा नहीं है. Any time during the year. And Okay, even okay. L1 में भी any of the conditions अगर follow होता है तो you are applicable to L1 or L2. अब तो इसमें 2 क्या- करोड़ का लिमिट तो किसी का भी होता है, छोटा सा हाँ, छोटा, तो आप L3 all में आ will जाओगे। fall. हाँ, Okay, आप L3. L3 में आ जाओगे तो दैट Okay. मीन्स यू आर अ स्मॉल माइक्रो एंटिटीज तो कम ही होगी ना. नॉर्मली यू विल बी अ हाँ. स्मॉल एंटिटी. तो स्मॉल Yeah, एंटिटी yeah. आपने जब 2 करोड़ का लोन लिया है तो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ स्मॉल एंटिटी, है ना, Okay. नॉट अ Yeah. माइक्रो, ऐसा उनका कहना है. Yeah, एंड yeah. विच इज अ वेरी रीजनेबल फिगर आई फील. जो पहले का फिगर था उससे अभी काफी रीजनेबल हो गया. लुकिंग एट द इन्फ्लेशन एंड ऑल, दे हैव चेंज द फिगर्स लाइक एनीथिंग नाउ. और अब Okay. इसके बाद उन्होंने क्या बोला कि ये तो हो गया कि भाई आपका L1, L2, L3 समझ में आ गया. अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि ये जितने भी अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं एज ऑन टुडे, राइट, ऑल दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उन्होंने क्या किया, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी उन्होंने डिवाइड कर दिया कि कौन से एप्लीकेबल होंगे एमएसएमई को और कौन से नहीं होंगे और कौन से कुछ कंडीशंस को वेवर करके करेंगे. बेसिकली क्या हुआ, आज तक के इंस्टीट्यूट हो चाहे गवर्नमेंट हो, दे वर ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन कॉर्पोरेट्स. बिकॉज क्या होता था कि कॉर्पोरेट का प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द पब्लिक वॉज इन्वॉल्व इन इट, है ना. बट अभी ऐसा हो रहा है कि एमएसएमई इज ऑल्सो मेजर पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी टुडे. दो दे आर स्मॉल एंड मीडियम, बट आज एक
very major part अपना economy run करती है because through MSME. So what they have, and the international transaction भी MSME के through हो रहा है. So the presentation they have, मतलब now the institute has realized is कि उसका भी presentation proper होना चाहिए because they are playing a major role in the economy. So this is the first time that the formal communication has been given about the standards. अभी तक क्या accounting standards अपन use करते थे because these are the correct method of accounting. But अब उन्होंने क्या बोला? It is applicable, so you have to follow it, right? And if you don't follow it, you have to report it. So disclosure देना पड़ेगा. तो now अभी second part उन्होंने क्या किया? Applicability में बोल दिया कि ये applicable है, ये applicable है. Accounting standards कोई भी change नहीं हुए हैं. ओनली उन्होंने बता दिया कि कौन से एप्लीकेबल होंगे और कौन से नहीं होंगे, बट कुछ उन्होंने इसलिए निकाल दिए सो दैट प्रॉपर अकाउंटिंग भी हो जाए और किसी को तकलीफ भी ना हो, यानी अननेसेसरी बर्डन. ऐसे करके उन्होंने ये पूरा ये लाया है. अब इसमें क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा. इफ सपोज you have an option to go for the relaxation or not go for the relaxation. आप अगर relaxation के लिए जाते हो तो फिर आपको mention करना पड़ेगा कि we are going for the relaxation and we are following it. And if you are not going for the relaxation, then you have to follow as any other applicable accounting standards. ये अभी उन्होंने डाल दिया इसमें, है ना. So disclosure आपको देना पड़ेगा. So this is all about, Vandana, this is basically the nutshell of the announcement which is applicable now onwards. So we have any specified way how the financials will be prepared? Any specific format need to be followed? Yeah, अभी देख मैं तुझे एक बार बताती हूँ कि format of balance sheet is not given. ये एक चीज उन्होंने अभी नहीं दी है. मतलब जैसे शेड्यूल 3 जो है, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज लॉ, दे गिव यू प्रिस्क्राइब फॉर्मेट कि बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे रहेगा एंड यू हैव टू फॉलो दैट. बट अभी इनके अनाउंसमेंट में बैलेंस शीट आप अपने हिसाब से बना सकते हो. आपको अगर हॉरिजॉन्टल बना है तो आप हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो, बिकॉज वो रूल अभी कुछ आया नहीं, बिकॉज वी आर अ नॉन एंटिटी. So non-entity can give any type of balance sheet, only disclosures and the accounting treatment has to be according to the accounting standards, because accounting standard में कहीं पे भी prescribed format नहीं दिया हुआ है. Only prescribed format is given in company law, and company law is out of the purview of MSME, right? So there is no prescribed format. आगे आ सकता है. तो my request will be any client who is falling under L1 and L2, right? L1 and L2, please follow a vertical format and almost close to the company law, not as detailed as company law, but as close to it possible, because आगे पीछे मुझे ऐसा लगता है कि उनका भी prescribed format आ ही जाएगा. And almost as you said कि अभी जो हमारे MSME है उनको सब applicable हो जाएंगे क्या? हाँ, मैं वही अभी ये जो अभी present ये दिख रहा है ना PPT, इसमें मैंने ना 3 इसमें डिवाइड किया है. नॉट एप्लीकेबल, राइट? सो 1 2 3 4 5 6 AS, that is AS3 which is relating to cash flow statement, right? AS17 which is relating to segmental accounting. S20 is recurring to earning per share. 21 is consolidated balance sheet. 23 is interim investment. हाँ, investment, and 27 is joint venture investments, right? तो ये जो है ये उन्होंने बोला है कि these MSME को कहीं पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा. एंड राइट सो, क्योंकि ये वैसे भी ऐसे टाइप के कुछ ट्रांजेक्शंस होंगे ही नहीं ना, क्योंकि आपको अर्निंग पर शेयर तो देना ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो इतना डिटेल में रहेगा ही नहीं. हाँ, बट अगर 27 इफ यू आर हैविंग अ जॉइंट होल्डिंग ऑफ एसेट्स और आपने कोई एक जॉइंट वेंचर किया है, इफ यू आर हैविंग दोस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस, then the announcement says then you have to follow 27, otherwise you don't have to follow 27. Is that clear? Then second, what I have divided is into all applicable accounting standards, right? All which are applicable to,
See, L1 everything is applicable. L1 में there is ये जो मैंने दिया है सिर्फ L2, L3, L4 because L1 is large which comes out of the purview of MSME. Which comes out of the purview of MSME. L2 is medium, L3 is small, and L4 is micro. So we are talking about only L2, L3 and L4. Now L2, L3, L4 में तीनों में AS1 which is about disclosure of accounting standards, AS2 is valuation of stocks, AS4 is about contingent events, and prior period item is S5. 7 is construction of construction contracts. 9 is income Revenue. recognition. 10 is assets, PPE, that is plant, property and equipment. 11 is foreign exchange. 12 is grant, government grants. 13 is investment accounting. 16 is borrowing cost. 22 is Earning per share. budget अपना deferred taxes and intangible assets. तो ये सब जो हैं है ना, these are all applicable to all the levels because ये आपका सारा basic accounting इसमें आ जाता है. अब मैंने 4 accounting को लाल करके रखा है, 15, 19 and 29. ये भी सबको applicable है, but इसमें उन्होंने कुछ relaxations दिया है regarding the disclosures. कुछ disclosures को उन्होंने easy कर दिया है because उतना detailed disclosures MSME के लिए requirement नहीं है ना. और 10 में सिर्फ L2 और L3 को कंसेशन मिला है और 22 और 26 को सिर्फ L4 को कंसेशन मिला है और बहुत मिनिमल कंसेशंस हैं. नाउ सम 14 इज ओनली एप्लीकेबल टू L2 एंड L4 यानी L4 के लिए माइक्रो के लिए 14 is not, मतलब amalgamation is not allowed, मतलब is not required. और amalgamation normally micro entity करेगी भी नहीं, है ना, इसलिए उन्होंने उसको out of the purview कर दिया. And 20 is impaired assets. तो impaired assets are important for medium and small, but not for macro. And 18 is related party, and 24 is discontinuing of operations. तो ये सिर्फ मीडियम को अलाउड है, स्मॉल और माइक्रो को भी इसमें से निकाल दिया इस परव्यू में से. तो अभी अपने पास क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज एप्लीकेबल. सो ये जो एप्लीकेबल 16 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, दिस वी नीड टू लर्न नाउ. आई मीन वी नो अबाउट इट, बट वी हैव टू मेक आवर क्लाइंट्स नो अबाउट इट व्हाइल डूइंग देयर अकाउंटिंग. अदरवाइज फिर हमें जब ऑडिट करते समय बहुत उनके साथ मुशक्कत करनी पड़ेगी. Can I have one question? Yeah, sure. This AS, by AS you mean only AS or Ind AS also? No. Ind AS is not applicable to MSME. So it is purely accounting standard. Purely accounting standards. Okay, fine. Ind AS कभी applicable था भी नहीं और अभी भी नहीं. Okay. Okay. We are talking about the basic जो institute, और अभी आपको बताऊं कि institute ने ये 31 मार्च को ये पूरा अनाउंसमेंट दिया, एंड अभी 13 जून को इवन कॉर्पोरेट अपना MCA ने भी ये डिक्लेयर कर दिया है. MCA has also given the same announcement of the accounting standard, applicability of accounting standard. So now it has become whole and soul that this will be applicable to our MSMEs also. So that is why that there was a need to educate or to get knowledge and upgrade even ourselves. See, if I am upgraded, I can upgrade my client. No, what happens with us is that हमें तो continuous पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा लग रहा है. नहीं, और हमें क्या ये सब पता था, बट अभी हम उसको रिलैक्स वे में ले लेते थे बिकॉज इट वाज नॉट फॉर्मली अनाउंस्ड. पता ही नहीं था. करेक्ट. हाँ, और मेनली अपने क्लाइंट्स को नहीं पता है, तो हमें अब उनको बताना पड़ेगा कि ये जरूरी है. और अगर वो नहीं करेंगे तो वी हैव टू नोट इन आवर रिपोर्ट, अदरवाइज वी विल बी एट प्रॉब्लम. So there can be. This was one of the questions. Before we jump into the key pointers, is there any penalty if I, as a chartered accountant,
forget to apply this standard, so any penalty will be there? नहीं, as such penalty नहीं है, but अब we will come under the purview of our mismanage, our professional diligence, अपना negligence हो जाएगा. अगर हम report नहीं करते हैं तो we will be liable for professional negligence, or disciplinary committee will has the right to take an action. Because then we are not following. Disclosure हमें देना ही पड़ेगा. अपना नोट अपने को अगर नहीं फॉलो होता है, और मैं अभी आगे आपको बताऊंगी कुछ इतना जरूरी है which are not being used, which is very important. नहीं तो हम अगर उसमें नहीं डालेंगे अपना नोट, तो we will be at problem. हाँ. So now we will move on to the key pointers which you want us to really take note when we are doing the audit for the financial year 2021 of the MSME. One query, one question. Yes. This AS11 and AS22 is also applicable. It is in the applicable list. Yes. But I have never applied this in other cases other than private limited companies. I have never done this calculation of deferred tax, and AS11 also I have not applied. So my query is who will see the compliance whether this balance sheet is liable for is of level 3 compliance and it is not made up to the mark. So who will monitor that? We, as an auditor, we have to find out whether our client comes into any of these levels. As an auditor, we are the ones who are going to check whether our client is coming under L1, L2, L3 or L4. नहीं, हमने डिफॉल्ट किया. हमने तो मैंने खुद का ही बात कर रहा हूँ कि मैंने तो है ना ये कभी ऑब्जर्व नहीं किया. नहीं, अभी तक के it was not required. अब ये 2021 जब आप ऑडिट करोगे तब इसका रिक्वायरमेंट हो गया है. अभी तक हमें नहीं भी. कविता, sorry to interrupt. What I'm trying to understand, what is say प्राइवेट लिमिटेड में नहीं किया है या प्रोप्राइटरी कंसर्न रहेगा तो भी उनको ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो जाएगा क्या? If you are coming under the turnover criteria, level 3. See, private limited company does not come under MSME. It's a corporate. Correct. So the corporate rules will come, not MSME. This is only related to non-corporate entities. Okay. प्राइवेट लिमिटेड के लिए आपको कंपनी लॉ में ही जाना पड़ेगा. अब स्मॉल हो चाहे बिग हो, कंपनी का वो क्राइटेरिया अब नहीं रहा. अब सारे क्राइटेरिया आपको कंपनी लॉ के अंडर में ही, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अंडर कंपनी लॉ एप्लीकेबल है वो आपको एप्लीकेबल होंगे, राइट? वहां पे कुछ कंसेशंस प्राइवेट लिमिटेड को जो दिए उतने कंसेशंस आपको मिलेंगे. बट ये जो अनाउंसमेंट है, दिस इज ओनली रिलेटेड टू नॉन कंपनी व्हिच डज नॉट कम अंडर द कंपनी लॉ एट ऑल. So What about LLP? LLP is also non-corporate. Okay. It is a non-company. Yes. अभी उन्होंने नॉन कॉर्पोरेट कर दिया. पहले नॉन कंपनी करते थे, अब उन्होंने नॉन कॉर्पोरेट कर दिया. तो LLP will come under this MSME. Okay. Right. अच्छा हुआ ये आज क्लैरिफाई हो गया. Another important just now spoke, meaning thereby it is not about the statutory audit when we are see the tax audit. Non-corporate audit is applicable है. So while doing tax audit, we have to take care of this standard. Yes. अभी तक के क्या है, हम कंपनी नॉन कॉर्पोरेट में जैसे पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, तो हम उसको छोड़ देते थे. ठीक है, मतलब इट इज फ्रॉम ऑडिटर टू ऑडिटर की भाई एप्लीकेबल है नहीं है. वी यूज टू गिव अ नोट, छोटा सा एक नोट दे दिया. बट अब कुछ जो मैं अभी आगे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताऊंगी जिसमें बहुत स्पेसिफिक क्लॉजेस जो बोले हैं कि अपने को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, तो अपने को देना ही पड़ेगा. हम अगर नहीं देते हैं तो वी आर नॉट फॉलोइंग द बैलेंस शीट इज नॉट शोइंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड देन वी हैव टू क्वालिफाई इट. Kavita, one more question. There's a question by J.R. Shah. If accounts and IT are not prepared by a chartered accountant, not fall in audit, then who will be responsible for non-compliance of AS? अब जब this accounting standard हम जो हमारा जो उन्होंने जो दिया है उस हिसाब से कविता आप बताइए, जवाब बताइए.
नहीं देखो, आपका टर्नओवर अगर L1 और L2 L3 में है तो आपका ऑडिट तो होना जरूरी है, बिकॉज टैक्स ऑडिट होएगा ना, टैक्स ऑडिट होएगा तो ऑडिट तो होगा ही होगा। तो आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका ऑडिट रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑडिट रिक्वायरमेंट तो जब ही नहीं होगा जब आप ये तीनों लेवल्स में नहीं आते हो, और या फिर आप L4 में आते हो। तो L4 में वैसे भी बहुत सारे कंसेशंस दिए हुए हैं, एग्जेम्पशंस एंड कंसेशंस दिए हुए हैं, तो इट्स ओके। बट आप अगर L1 L2 L3 में आ रहे हो तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अकाउंटिंग नहीं कर रहे हो, ऑडिटिंग नहीं कर रहे हो, बिकॉज यू विल कम अंडर द पर्व्यू ऑफ ऑडिट। Kavita, one more question. हाँ। Can you just explain the difference between the corporate and company, as you said that they have now made it corporate, earlier it was company. हाँ नहीं, सी नाउ कंपनी, पहले उसको कंपनी यूज करते थे ना अपन, कंपनी नॉन कंपनी। कॉर्पोरेट अभी कैसे है कि LLP को अपन कॉर्पोरेट बोलते हैं। तो व्हाट दे हैव सेड इज दैट एनीथिंग व्हिच कम्स अंडर कंपनी लॉ, व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लॉ, विल बी कंपनी। Okay. और any entity which is not registered under company law is non-entity and non-company, अच्छा। non-company, non-corporate. नहीं, तो what is the difference between the company and corporate term? The term company and corporate, how is they distinguished? जी, corporate मतलब देखो जैसे अभी वो LIC, right? It's not a company, it's a corporate. It is registered under a different law of the Okay, government. I got it. So मतलब आप मतलब it is a government company, you mean to say? हाँ, There is a then separate other- statute under which it is governed by. हाँ। Okay, So so that मतलब is आपका corporate. आप कंपनी लॉ के अंदर नहीं हो, that is corporate. That is corporate. हाँ, और जो कंपनी लॉ को अप्लीकेबल है तो वो कंपनीज में आ जाता है। कंपनी है। और जो तो एक तो कंपनी में हो गया तो कंपनी लॉ का फॉलो करेंगे, और जो कंपनी में नहीं है तो वो नॉन कॉर्पोरेट और नॉन कंपनी एंटिटी दोनों एक चीज में आ जाएगी, ये इसमें आ जाएगी। ये करेक्ट, गॉट इट या। तो अभी ना कविता, एक और एक क्वेश्चन बीच में आया था, अभी जया ने पूछा है, जतिन भाई है, जयंत या जतिन। So the question was that threshold of tax audit has increased to 5 crores and up to 2 crore 44 AD applicable है ना। अभी 2 करोड़ के नीचे रहेगा तो 44 AD में जा सकते हो, 2 करोड़ के ऊपर से 5 करोड़ के बीच में तो कहीं ऑडिट आता ही नहीं है, अगर आपने परसेंटेज डिक्लेयर कर दिए तो ये टर्नओवर लिमिट क्राइटेरिया क्या था अपना लेवल 4 के लिए? लेवल 4 के लिए अपने लिए था 10 करोड़ ना, 10 करोड़। हाँ, तो फिर वही नहीं, उन्होंने जो चेंजेस आए ना बहुत स्मार्टली किए हैं। यू कैन नॉट वेवर इट नाउ, वो बहुत साइंटिफिकली उन्होंने किया है, एंड विद फुल पूरा अभी का जो ट्रांजैक्शन लेवल और इन्फ्लेशन लेवल को देख के उन्होंने इतना बहुत, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ। It's not, we cannot be casual, and we have to actually, we are always been careful, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, but we have to educate our MSME clients, बस we have to educate our MSME clients कि नहीं देखो अब आपको मतलब we are bound। पहले कैसे था कि हम बोलते थे पर वो बोलते थे अरे अभी नहीं करेंगे छोड़ो ना, तो अपन बोलते थे अच्छा ठीक है जाने दो, एक छोटा सा कहीं तो भी नोट लिख के छोड़ देते थे। नाउ वी कैन नॉट डू दैट, वी हैव टू टेल देम दैट आवर हैंड्स आर टाइड, हमको नहीं तो आपको नोट डालना ही पड़ेगा है ना। डिपार्टमेंट ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है। हाँ नहीं, अब अपन अपने पास इजी हो गया, हम क्लाइंट को बोलेंगे कि हमको नोट डालना पड़ेगा बिकॉज नाउ नहीं तो मैं एट फॉल्ट आ जाऊंगी। अभी तक क्या है, वी यूज टू ऑब्लाइज देम, सोते हैं चलो तकलीफ है जाने दो नहीं कर रहे हैं, मतलब जैसे AS11 जैसे बोला ना, अभी AS11 तो हमने कभी फॉलो ही नहीं किया, AS15 तो कोई फॉलो ही नहीं करता है, MSME में कोई नहीं करता है, तो अपन बोलते थे चलो जाने दो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस छोड़ दो। बट नाउ वी हैव टू से दैट आई हैव टू पुट अ नोट, आई हैव टू पुट अ नोट इन माय ऑडिट रिपोर्ट बिकॉज अदरवाइज आई विल सफर। तो अब उनको वो बोल के अपने इसको करना पड़ेगा। So let's move on to the key pointers. Yes, let's move on to the key pointers. अभी key pointers में मैंने क्या सोचा कि 4 very important accounting standards which is applicable to each and every, यानी माइक्रो से लेवल हर चीज को, और जो एवरी ट्रांजैक्शन में काम आता है। एक तो है AS2।
AS2 में दैट इज हाँ एक सिर्फ मैं थोड़ा सा बताना चाह रही थी, ये अनाउंसमेंट का ही एक पार्ट है। ये वाला स्लाइड में उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप सपोज L2 में थे, है ना, if the entity was in L2, L3 or L4 and then this year you have qualified for L1, है ना, आप पहले मीडियम स्मॉल थे और आप एकदम लार्ज हो गए हो, तो इन लार्ज वन यू हैव टू गिव अ comparative statements, right? So what they have said is that the first year of L1 you can forego the comparative statements because comparative statements आपके पास रहेंगे नहीं, तो you are allowed to forego the first year and then second year onwards you give the comparative statements. And एक second उन्होंने क्या बोला है कि suppose you were in L1 and now we have gone to L2, यानी आपका टर्नओवर नीचे हो गया या बोरोइंग नीचे हो गया है, तो फिर क्या करना है? तो उन्होंने बोला कि you have to be in L2 for continuous 2 years to enjoy the L2 concessions, exemptions and relaxations. If you were in 1 year you were L1, then you L2, then again in L1, so you will still follow L1 rules. और L2 का L3 L4 का मतलब one every other level. You have to be continuously into the same level for 2 years. Only then will you be able to enjoy those exemptions and relaxations, right? And charitable and religious organizations का उन्होंने बोला unless you don't have any commercial activity or business activity, only then you are not allowed accounting standards. Otherwise, these accounting standards will be allowed the same way as any other business. And hello, we have to generate a UDN even for MSME audits. So please be careful about this also, because हमारा अभी शुरू हो जाएगा ऑडिट, तो हमें जैसे जैसे हम साइन करेंगे तो प्लीज UDN निकाल लेना, only not for company, even for MSME. Is that clear? Madam, that means दो UDN generate होगा, एक tax audit will be different and normal audit will be different. Statutory audit will be applicable to MSME now. Yes. So दो जी, दिन बिल्कुल होगा applicable. उसका. वो होगा, वैसे करना ही पड़ेगा। अगर हम पहले कंपनी के लिए करते थे, अब इसके लिए भी करेंगे। So you mean to say हमें एक इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट अलग से ड्राफ्ट करके देना पड़ेगा? हाँ, अलग तो से इसका ऑडिट रिपोर्ट का भी ड्राफ्ट आया है क्या? नहीं, ऑडिट रिपोर्ट का तो ड्राफ्ट है ना, अपन जो ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं वही है, मतलब देयर इज नो चेंज इन दैट, देयर इज नो ड्राफ्ट फॉर ऑडिट रिपोर्ट। he was asking is that see 3CD भरते हैं, that is tax audit, correct? तो वहां पे ISD एप्लीकेबल होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में अभी तो समरी कुछ आई नहीं है, क्लोज डाला नहीं है उन्होंने, तो हम ये रिमार्क्स कहाँ लिखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलोड और नॉट फॉलोड, नॉन डिस्क्लोजर हमें डालना कहाँ है? नहीं, अपने नोट्स में, अपना ऑडिटर्स नोट रहता है ना, वहां पे डालना है It will कि form part of notes to accounts, वही। हाँ, नोट्स टू अकाउंट, इवन उसमें अपन अभी तो लिखते ही थे ना कि AS2 is followed। देखो 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का अपन हर समय बोलते थे, AS2 is हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड फिक्स्ड असेट्स आर ऑन दिस, वो तो हम अभी भी लिख रहे हैं सर। हाँ, तो अभी अपने को जैसे कंपनी में, अपन कंपनी में लिखते थे ना, ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड एज पर द रूल्स एप्लीकेबल, ऐसा डालते थे ना, अब इसमें भी डालना पड़ेगा अपने। So then it becomes notes to account. So notes to account तो टैक्स ऑडिट का एक यूनिट जनरेट हुआ ही है ना, तो वो ही एप्लीकेबल हो जाएगा ना। हाँ, नहीं मतलब जैसे अगर टैक्स ऑडिट नहीं है पर आपका ऑडिट है या आप ऑडिट कर रहे हो तो आप हो जाएगा। जैसे अभी मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का कर रहा हूँ एंड दे आर ट्रेडिंग and then we have to do tax audit is not applicable, but under statute if I am doing, then the statutory union will come. Yes. That is Yes. नहीं, और क्योंकि जेपी का क्वेश्चन कैटेगरिकली ऐसा था कि टैक्स ऑडिट का एक यूनिट रहेगा और दूसरा अलग से करना पड़ेगा, so that is not the case. That's what नहीं वैसा नहीं। और एक चीज है कि जैसे हर क्लाइंट को आपको बोलना पड़ेगा कि आप अगर ये जो रिलैक्सेशंस फॉलो करते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि आई एम एन MSME, विच लेवल ऑफ MSME यू आर,
and I am following all the accounting standards applicable to level 2, ऐसा हमको लिख के उनको अपने accounting notes में डाल के देना पड़ेगा. That is something very important. You have thrown Yes. the light on that. That's You have to tell them which level they belong to, and they have to give that कि we belong to this level. And आप अगर सोचते हो कि मुझे नहीं follow करना है, मेरे को पूरे accounting standards apply करना है, जैसे कुछ पहले पुराने थे ना जो मतलब अब तो 250 हो गया, पहले तो 50 था, तो पहले जो L1 है अब वो L1 नहीं रहे, है ना. बट अगर वो फॉलो कर रहे हैं, उनको लगता है कि हमको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है, तो दे कैन सी दैट we are going for all the accounting standards and we are following all them as per the stated in by the institute. ऐसा करके आप डाल दो तो वो भी चलेगा, बट आपको नोट में डालना ही पड़ेगा कि which level you are in. That is very important. तो हमें वो उनको बताना पड़ेगा. जैसे पिछले साल का टर्नओवर के बेसिस पे बनेगा ना ये, इस साल का मतलब ऑडिट के पहले जितना भी टर्नओवर है उसके बेसिस पे उनको समझ में आ जाएगा कि वो L1 है कि L2 है, क्योंकि प्रीसीडिंग ईयर का है ना ये. ठीक है. सो लेट्स कम टू अपना valuation of inventories. So valuation of inventories, we all give this note that what type of policy, accounting policy we are following, whether it is a cost or net realizable value. This we all follow, yes or no? So what is now what they are saying is that when you are following cost or net realizable value, whichever is lower, but if मतलब ये accounting standard में पहले से ही था, but I just want to highlight the second point, this point, that if you are having a raw material stock, right? Raw material stock will not be devalued to net realizable value unless your finished goods are devalued. Is that clear? आपका अगर finished costs above cost on profit sale हो रहा है, तो आप raw material को net realizable value पे नहीं value करेंगे, irrespective of उसका net realizable value is lesser than their selling value. तो ये एक चीज मुझे highlight करनी थी. और एक और चीज highlight करनी थी कि methods of valuation, जैसे cost formula होता है ना, तो there is one की FIFO method और एक weighted average method होता है. तो normally we follow FIFO method और some follow weighted average. but अगर आप दोनों यूज कर रहे हैं, कुछ स्टॉक के लिए FIFO यूज कर रहे हैं और कुछ स्टॉक के लिए वेटेड एवरेज कर रहे हैं, तो इन योर नोट यू हैव टू से दैट फॉर स्पेयर पार्ट्स वी आर यूजिंग वेटेड एवरेज, फॉर फिनिश गुड्स वी आर यूजिंग FIFO. आपको स्पेसिफिकली एवरी फॉर्मूला, कॉस्ट फॉर्मूला आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने अकाउंटिंग पॉलिसी में. इज दैट क्लियर? अब एक चीज मैंने रियलाइज की है कि नॉर्मली वेटेड एवरेज, जैसे हमारे व्हीकल इंडस्ट्री में नॉर्मली जो ट्रेडर ये एजेंसीज होती है ना कार्स की और मोटर व्हीकल्स की, मोटरसाइकिल्स की, आई हैव सीन दैट इन देयर दे हैव अ स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम होता है. तो कुछ स्पेयर पार्ट्स ना वो लोग वेटेड एवरेज में कर लेते हैं और कुछ उन लोग का FIFO पे रहता है. जो कम यूज होता है ना स्पेयर पार्ट्स, वो FIFO पे करते हैं और कुछ उनका ऑटोमेटिकली वेटेड एवरेज हो जाता है. तो वी हैव टू बी केयरफुल कि वो लोग कौन सा वेटेड एवरेज में कर रहे हैं और कौन सा FIFO में कर रहे हैं. एंड वी हैव टू नोट दैट डाउन एंड उनको बोलना पड़ेगा कि आपके अकाउंटिंग पॉलिसी में दोनों डालो. इज दैट क्लियर? So you can have two well, if there is a specific demarcation that for certain goods I am following this method and Yes, certain goods I am yes. following this method. So that You can do that. That is allowed. that note we have to put up. That is allowed, but provided you mention that which is Noting has to be done and clear cut indication should go. yeah, yes. अब हम आ जा now I'll move to see, mostly we have been used to accounting standard, fixed assets accounting standard. ये 4-5 साल पहले it has shifted to property, plant and equipment, right? तो इसमें कुछ peculiar changes हैं, right, which is different from our previous accounting standards on fixed assets, है ना. पहले 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते थे, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स
which was AS10 as it is, and एक रहता था accounting standard of depreciation which was AS6. Now AS6 has scrapped. Now if both accounting standards on fixed assets and depreciation has come under AS10, that is property, plant and equipment. Is that clear? अब इसमें इन्होंने एक और नया कॉन्सेप्ट लाया है which is called cost model of presenting your fixed assets in two methods, which is called cost model और revaluation model. Cost model जैसा अपना पुराना था, historical cost जो होता था वैसा ही है, और depreciation माइनस कर दो, impaired loss माइनस कर दो, that is your fixed cost presented. अभी नया कॉन्सेप्ट एक और लाया उन्होंने, revaluation model. ये इंडेस 16 से मैच करने के लिए वहाँ पे जो फेयर वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसको यहाँ पे उन्होंने डाला है. तो अगर आप चाहते हो कि आपके एसेट्स फेयर वैल्यू पे हो, तो यू हैव टू शो इट ऑन फेयर वैल्यू ऑन द बैलेंस शीट डेट एंड देन डेप्रिसिएशन इम्पेयर्ड लॉस माइनस करके. अब फेयर वैल्यू कैसे मिलेगा? तो आपको ऑफकोर्स एक वैल्यूअर रखना पड़ेगा. यू हैव टू गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम योर प्रोफेशनल वैल्यूअर. उससे आपके फिक्स एसेट्स का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, एंड दैट वैल्यूएशन ऑन द बैलेंस शीट डेट आपको डाल के और फिर वैल्यू करना पड़ेगा. एंड ये आपको रेगुलर एवरी बैलेंस शीट डेट आपको रिव्यू करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांट टू नोट इज द रिपोर्टिंग ऑफ gross carrying amount and accumulated depreciation. This is very important in this year. I have been doing this all summer and I think everybody has to do this. आपको अगर ध्यान में होगा तो हमारे जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस थे, अपने क्लाइंट्स थे, नॉर्मली हम फिक्स एसेट्स ओपनिंग WDV, लेस डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग WDV करते थे. यस और नो? अब हमें ग्रॉस वैल्यू भी दिखाना पड़ेगा. तो वी हैव टू शो द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, accumulated depreciation and then the closing WDV and gross value. ये एक्सरसाइज अभी हमें इस साल करनी पड़ेगी, और ये नहीं करेंगे तो हमें नोट डालना पड़ेगा. अदरवाइज वी आर नॉट, the client is not following the AS10. So this exercise is a big exercise, क्योंकि कब कौन सा प्रॉपर्टी खरीदा हुआ है वी डोंट नो, उसका ग्रॉस वैल्यू क्या है, बिकॉज हम तो ग्रुप क्लास ऑफ एसेट्स में डाल देते हैं. अब क्लास ऑफ एसेट्स में क्या होता है कि वो WDV ओपनिंग WDV के हिसाब से चल रहा है ना, बट WDV के हिसाब से उसका ग्रॉस वैल्यू आपको पता नहीं चलेगा. तो आप kept that chart ready के ग्रॉस, देन डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस क्या था और नेट WDV क्या है. अगर हम ये फॉलो करना चालू कर दिया कि ओपनिंग WDV, डेप्रिसिएशन, देन देयर इज अ इशू. सो हमें एक्सरसाइज करके इस साल पूरा करना ही पड़ेगा. हाँ, फिर से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये अब यहाँ पे आ गया है, एंड दिस इज स्पेसिफिकली सेड कि अपने AS10 नाउ हैज टू बी फॉलोड, तो यू हैव टू शो दिस, राइट. अब इसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया है ना. इसमें मीडियम को कुछ रिलैक्सेशन नहीं दिया है, सिर्फ स्मॉल एंड माइक्रो को उन्होंने क्या बोला है कि आपका कोई एसेट है जो आइडल पड़ा है एंड आप टेम्पररीली नहीं यूज कर रहे हैं, तो उसको आपको आइडेंटिफाई नहीं करना है. और समथिंग विच इज ऑलरेडी डिप्रिसिएटेड एंड यू आर स्टिल यूजिंग इट, उसको आपको आइडेंटिफाई नहीं करना है. दिस इज द सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज दैट आपने अगर कॉस्ट मॉडल यूज किया है तो रिवैल्यूएशन एसेट का स्पेसिफिक डिस्क्लोजर नहीं दिया तो चलेगा. एंड कोई रिटायर्ड एसेट आपका पड़ा है और आपने नहीं बताया तो चलेगा, बट दिस relaxation is only for L3 and L4 entities. Is that clear? yes ma'am. And एक और चीज मैं इसमें बताना चाहती हूँ कि हम बोल रहे हैं ना कि ये फेयर वैल्यू देख रहे हैं ना. फेयर वैल्यू, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू. इज दैट क्लियर? फेयर वैल्यू इज द मार्केट वैल्यू विच इज द वैल्यूअर इज गिविंग यू, and net realizable value is the selling price at which you are able to sell the asset or the stock. Is that clear? I hope everybody is clear with that.
so that I can move to the next AS15. This, please everybody be very careful. AS15 is not being followed by anybody and everybody has to follow it. मैं पहले तो मैं समझा देती हूँ, पता नहीं सबको पता है कि नहीं कि AS15 क्या चीज है. तो आई एम गोइंग टू गिव अ वेरी स्मॉल सिनॉप्सिस कि AS15 होता क्या है. AS15 is related to employee benefits. Okay, what are the types of employee benefits? One is short-term employee benefits, post-employment benefits, long-term employee benefits and termination benefits. अब इसमें एग्जाम्पल देती हूँ. तो short-term employment benefits में जैसे leave encashment, which will be a short-term employment benefit. Post-employment यानी आपके employment के बाद आप gratuity देते हो, provident fund देते हो, तो वो post-employment हो जाएगा. Long-term मतलब आपका एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है, उसके बाद भी आप 3-4 साल तक उसको पेंशन देते हो कोई टाइप का, तो वो मतलब लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट हो गया. एंड टर्मिनेशन यानी वॉलंटरी टर्मिनेशन या कंपल्सरी टर्मिनेशन आप देते हो, वो उसमें जो बेनिफिट्स आप देते हो उनको, यानी उनको छोड़ के जाने के लिए आप उनको कोई बेनिफिट्स देते हो. तो दीज आर कॉल्ड द 4 टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स विच आर कवर्ड अंडर AS15 and all are needed to be given in discounted value. Is that clear? We are not giving in discounted value. Nobody is giving in discounted value, which is a major problem. See, what they are saying is कि आपका ये आज का खर्चा नहीं है, ये आपका 5 साल बाद 6 साल बाद ये खर्चा आएगा, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू आपको आज देखना पड़ेगा. Is that clear? So if I'm doing the provision of the same, or am I forced to do the provision? Provision to you, we are doing provision, but we are doing at जनरल टेंडेंसी है MSME में नहीं करते वो लोग, वैल्यूएशन नहीं कराते हैं वो लोग. हाँ, वैल्यूएशन नहीं करा रहे हैं, तो एक्चुअल वैल्यूएशन ये डिस्काउंटेड वैल्यूएशन हम नहीं कर सकते हैं. प्लीज डोंट ट्राई टू डू दोस एक्चुअल वैल्यूएशंस, दोस कैलकुलेशंस आर टू कॉम्प्लिकेटेड. There are agencies which do only this. Tell your client, request your client to hire those agencies to make the provisions and then put them in your balance sheet as those provisions. This is very important. Am I clear? अब इसमें कुछ concessions दिए हैं. There is a sigh of relief. There is a sigh of relief in this, जो मैं अभी आगे में डिस्कस करूंगी. कुछ लोगों को इसमें कंसेशन मिला है, बट 80% जो लार्ज और मीडियम एंटिटीज है उनको एक्चुअल वैल्यूएशन कराना ही पड़ेगा. बाकी मीडियम एंड स्मॉल को कुछ कंसेशंस दिया, वो मैं आगे डिस्कस करती हूँ. बट ये माइंड में रखना कि आपको उनसे एक्चुअल वैल्यूएशन कराना चाहिए. इफ यू आर हैविंग एनी ऑफ दीज बेनिफिट्स, आपके पास एनकैशमेंट और या सिंपल है, मैं तो हमारे क्लाइंट को बोलती हूँ कि आप लीव एनकैशमेंट का प्रोविजन ही मत रखो, वो बेनिफिट दो ही मत. अगर वो बेनिफिट ही नहीं दिया तो उसका वैल्यूएशन ही नहीं करना है. सिंपल है ना. तो आप अगर कोई बेनिफिट देते हो तो आपको उसका वैल्यूएशन कराना पड़ेगा, और आपको रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग का डिस्क्लोजर भी करना पड़ेगा. उसका रिकग्निशन होता है. आपको लायबिलिटी जो दिखाते हो ना आप, तो उसकी लायबिलिटी में आपने जो एसेट्स लिए हैं, इन्वेस्ट किए हो ना आप, फ्यूचर पेमेंट के लिए आप कुछ एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू माइनस योर एक्सपेक्टेड लॉस, वो आपको लायबिलिटी में प्रोविजन करके दिखाना पड़ेगा. फिर आपको आपके जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें कुछ इनकम मिलती है या एक्सपेंस आता है, लॉस आता है, तो वो आपको P&L में दिखाना ही पड़ेगा एज एन एक्सपेंस. इज दैट क्लियर? तो ये है. अभी मैं थोड़ा सा स्नैपशॉट. This is something actually new. People are not following. प्रोविजन तो दूर की बात है, वो अभी हमें उनको समझा के वो प्रोफेशनल टैक्स में भी लाइक 10,000 के ऊपर है, तो मतलब फॉर फीमेल देयर इज अ थ्रेशोल्ड ऑफ 10,000 एंड फॉर मेल इट इज 7,500. तो वो कैश में सैलरी दे देते हैं, वो दिखाते ही नहीं बुक्स में. तो ये बेनिफिट्स उनको समझाना पड़ेगा कि लेट्स नाउ बिकम मोर ट्रांसपेरेंट, लॉ कंप्लायंट एंड डू द प्रोविजन. और सामने उनको ग्रेच्युटी देने के लिए आप जो बोल रहे हो वो इन्वेस्टमेंट एसेट्स में किया, कोई एफडी में या कहीं पे किया रहेगा, फिर उसमें से ये प्रोविजनल वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू माइनस करके फिर डिफरेंशियल प्रॉफिट और लॉस आपने जैसे बताया बुक करना पड़ेगा. तो ये तो
हरकुलन टास्क उसमें वो जैसे ग्रेच्युटी पीएफ में दो टाइप के होते हैं, एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान होता है और एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान होता है। तो कंट्रीब्यूशन प्लान में आप एफडी करके कर सकते हो कि भाई इतना ही मिलेगा, इसमें से जो मिलेगा वो तुमको देंगे, बाकी मुझे नहीं मालूम। और एक बेनिफिट प्लान होता है कि हम इतना ही देंगे, तो उसके लिए चाहे मेरा एसेट प्लस हो या माइनस हो, आपको मैं इतना दूंगा। तो वो फिर अलग टाइप का अकाउंटिंग होता है, जिसमें पर normally small where the employer is clear that my employee is my human asset, and for them I have to do the provision of long term planning. And I think government is also trying to do जो बोलते ना जो सेक्टर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जहाँ पे पीएफ ये सुविधा ही नहीं है। जैसे हम अब चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलो, हमें पीएफ कहाँ से मिलेगा? अगर आप बड़ी फॉर्म में भी चले गए तो क्या बिग फोर उनके पीएफ का प्रोविजंस कर रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन दिस इज आल्सो एन इश्यू वी नीड टू एड्रेस। यस, एंड जैसे लीव एनकैशमेंट होता है ना, तो लीव एनकैशमेंट भी दो टाइप का होता है। एक होता है एक्यूमुलेटेड लीव एनकैशमेंट और एक होता है नॉन एक्यूमुलेटेड। नॉन एक्यूमुलेटेड यानी साल भर में आपने लीव लिया तो लिया, नहीं लिया तो इट विल बी वेस्टेड, तो वो तो ठीक है, दैट लैप्सेस इन दैट ईयर, तो उसका कोई प्रोविजन नहीं करना पड़ता है। बट अगर आपने आपके क्लाइंट ने एक्यूमुलेटेड लीव एनकैशमेंट का पॉलिसी रखा है, तो उसमें भी फिर दो टाइप का होता है। एक होता है कि समझो कि आप जब कंपनी छोड़ के जाता है कोई एम्प्लॉय, तो उसको एक्यूमुलेट होके टोटल कैश में एक साथ में मिलता है लीव। हाँ, तो वो कैश में मिलेगा कि नॉन कैश में मिलेगा? अगर कैश में मिलेगा तो उसका भी उसका भी डिस्काउंटिंग करके आपको प्रोविजन करना पड़ता है। तो ये सब चीजें अपने को पहले ही उनकी पॉलिसीज में देखना पड़ेगा, और अगर नहीं करते तो बेटर, क्योंकि इतना अगर नहीं फॉलो कर सकते तो इट्स बेटर नॉट टू डू इट ओनली। ओके, ना कंसेशन क्या मिल सकता है? लेट्स कम टू व्हाट इज द रिलैक्सेशन पार्ट इन द AS 15, राइट? तो अब AS 15 में माइक्रो को माफ है ना? माइक्रो को माफ है, स्मॉल एंड मीडियम, स्मॉल और मीडियम में उन्होंने एक कंसेशन दिया है, इफ यू आर हैविंग एम्प्लॉइज लेस देन 50, ओके, इफ यू आर हैविंग एम्प्लॉइज लेस देन 50, देन you don't need to do actual valuation for non cash short term accumulation। यानी आपका अगर non cash लीव एनकैशमेंट का प्रोविजन है तो आपको उसका डिस्काउंटिंग नहीं करना पड़ेगा। आपका लॉन्ग टर्म जो पेंशन फंड है उसका भी आपको डिस्काउंटिंग नहीं करना पड़ेगा। फिर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स में भी आपको कंसेशन मिलता है, अगर ओनली इफ योर एम्प्लॉयज आर लेस देन 50। Is that clear? If your employees are less than 50, then these four concessions are given to you. Otherwise, you are applicable, and 15 is applicable to a medium and small employees entities. Is that clear? So please. सबसे पहले हमें देखना है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 50 से ज्यादा एम्प्लॉई है, तभी ये एम्प्लॉइज 50 से ज्यादा है तो ये अट्रैक्ट होगा। 4 को तो वो एप्लीकेबल ही नहीं है। नहीं, L1 को तो पूरा, L1 के लिए 50 कुछ नहीं है, L1 में तो सब कुछ एप्लीकेबल है। इसके लिए 50 की है और 4 ऑलरेडी आउट ऑफ परव्यू है। हाँ, आउट ऑफ परव्यू, ठीक है। तो दिस इज 15। नाउ 16 का अभी 16 में भी कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 इज अबाउट कैपिटलाइजेशन ऑफ योर बोरोइंग कॉस्ट, है ना? अपना जो इंटरेस्ट है वो जब हम लोन कोई कैपिटल को खरीदने के लिए लेते हैं तो हम उसको कैपिटलाइज करते हैं, राइट? दिस इज अ सिंपल, इसमें कुछ चेंजेस 4-5 साल पहले आए थे, तो उसको मैं सिर्फ हाईलाइट करना चाहती हूँ। एक तो पहले इट हैज टू बी रिलेटेड टू योर कैपिटल, ओनली देन यू कैन कैपिटलाइज इट, राइट? द लोन हैज टू बी रिलेटेड टू अ लॉन्ग टर्म एसेट and it should be used to purchase that long term asset. Is that clear? You have taken a loan in the name of long term assets, but you have not used to purchase that and used it for some other purpose, then वो कभी भी पकड़ में आ सकता है and then it will be penalized. Is that clear? Secondly, they are saying कि आपने suppose
एक बिल्डिंग बनाने के लिए लोन लिया, फैक्ट्री बिल्डिंग बनाने के लिए लोन लिया, राइट? अब वो फैक्ट्री बिल्डिंग बनाते समय आपने लोन लिया, अब वो फैक्ट्री बिल्डिंग, जैसे अभी कोविड आया है ना, अब कोविड में 2 साल फैक्ट्री बनी नहीं, तो ये जो 2 साल फैक्ट्री बनी नहीं, तो ये जो इंटरेस्ट है इट विल नॉट बी कैपिटलाइज्ड. So what they say is suspension. It is a revenue expenditure in that case. Yes, yes. This is very important. Please, ये आज का प्रोविजन नहीं है, ये बहुत 4-5 साल पहले ये इंट्रोड्यूस हुआ था. बट द थिंग इज दैट हम स्मॉल एंटिटीज में इतना ध्यान देते नहीं थे, बट अब ये ध्यान रखना पड़ेगा. अगर आपने कोई चीज कैपिटलाइजेशन के लिए लोन लिया है और वो चीज सस्पेंड हो गई है, वो कंस्ट्रक्शन सस्पेंशन में है, तो वो सस्पेंशन पीरियड में कैपिटलाइज नहीं होगा. इट विल स्टॉप कैपिटलाइजेशन. वो साल का इंटरेस्ट आपका पीएनएल में जाएगा. वेरी क्लियर. अब कोविड के पीरियड में मॉनिटोरियम आया है, राइट? तो मॉनिटोरियम पे अभी थोड़ा लड़ाई चल रहा है कि बिकॉज मॉनिटोरियम आया है तो वो हमारा कंस्ट्रक्शन बंद था और मॉनिटोरियम पीरियड आया था, तो हमको इंटरेस्ट भी नहीं देना था. तो अब जब भी इंटरेस्ट देंगे तो कंस्ट्रक्शन चालू है तो हमको वो इंक्लूडेड इन द कैपिटल कॉस्ट. लॉजिकल है वो, लॉजिकल. वन हैव टू, इसमें इतना कंफ्यूजन क्यों होना चाहिए? क्लियर कट है कि जब आप काम करोगे तब जब पे करोगे तो वो आपका कैपिटलाइज हो जाएगा. जब नहीं हो रहा है तो वो कैपिटलाइज वैसे भी नहीं करना है, रेवेन्यू में बाद ही मिल रहा है ना. नहीं, पर जैसे मॉनिटोरियम पीरियड मिला था ना, अभी कंसेशन मिला है बहुत जगह इंटरेस्ट का, वो इस पीरियड का अगले पीरियड में चला गया, पर तब कंस्ट्रक्शन चालू है तो वो मिल सकता है. कंसेशन मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो अभी एज अ सेफ साइड प्लीज पुट इट इन पीएनएल. हाँ, मैं वही बोलती हूँ ना, अल्टीमेटली यू विल सेव ऑन योर इनकम टैक्स. तो वो चीज प्लीज ध्यान रखो. प्लीज डोंट कैपिटलाइज इट, पुट इट इन योर पीएनएल, राइट? अब उसमें और एक चीज है कि आपका समझो कि कंपोजिट बन रहा है. जैसे आप एक फैक्ट्री बना रहे हो जिसमें एक फैक्ट्री शेड आ रहा है, एक स्टोरेज यूनिट आ रहा है, वेयरहाउसिंग यूनिट आ रहा है, ऐसा पूरा एक यूनिट बन रहा है आपका फैक्ट्री का, राइट? तो व्हाट दे आर सेइंग इज when a substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use or for sale has been completed. समझो कि आपने आपका वेयरहाउस वाला जो पार्ट है फैक्ट्री का वो बन गया है, आप वहां पे स्टोरेज करना शुरू कर दिए हो, तो उस पर जितना लोन था उतना प्रोपोर्शन, उस कॉस्ट का प्रोपोर्शन ऑफ लोन, उतना इंटरेस्ट आपका पीएनएल में जाएगा. समझा? तो प्रोपोर्शनेटली जितना कंप्लीट हो गया है आपका एंड विच इज इंडिपेंडेंटली यूजेबल, उतना प्रोपोर्शन ऑफ योर इंटरेस्ट शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड, इट शुड बी पुट टू पीएनएल. एंड द डे यू हैव कंप्लीटेड योर फिक्स एसेट्स, या कंप्लीशन हो गया है, बट आपका लोन तो चलता जाएगा क्योंकि लोन तो लॉन्गर पीरियड के लिए है, तो आपका लोन उस दिन ऑनवर्ड्स पीएनएल में जाएगा. इज दैट क्लियर? So this is another important AS16 which has to be given. AS21 is relating to impaired loss. Impaired loss यानी जहां आपका realizable value of the asset, when your realizable value of the asset is much lesser than your actual carrying amount. यानी हम फिक्स एसेट्स दिखा रहे हैं 2 करोड़ का, बट आज अगर मैं उसको बेचने जाऊंगी तो मुझे 10 लाख मिलेंगे, या समझो कि 1.5 करोड़ ही मिलेगा. तो आपका अगर इतना वैल्यू कम हो गया है तो ये क्यों होता है? कोई चीज ऑब्सोलीट हो गई या डैमेज हो गई या फिर उसका मार्केट ही नहीं है. आज के डेट में उसका मार्केट ही नहीं है. अगर वो मशीन इतनी रिडंडेंट हो गई है कि मैं आज अगर उसको बेचने जाऊंगी तो सिर्फ स्क्रैप वैल्यू में बिकेगा, बट वो मशीन दिख रही है मेरे इसमें. तो what they are saying is कि you have to reduce by under the AS28 you have to give an impaired loss दिखाना पड़ेगा. Is that clear? Okay, so credit the asset and debit the P&L and narration में डाल दो impairment loss. हाँ, मतलब fixed assets less depreciation less impaired loss is your net carrying value.
है ना। अब ये तो हो गई आज, अब हो सकता है अगले साल मेरा इम्पेयर्ड लॉस उतना नहीं है जितना इस साल है, तो फिर आप क्या करोगे, उसको रीवैल्यू करोगे और जितना आपने लॉस पीएनएल में डाला था उतना वापस क्रेडिट कर दोगे पीएनएल को और बैलेंस अमाउंट एसेट में एडजस्ट कर दोगे। तो इसमें समथिंग लाइक व्हाट वी यूज्ड टू डू फॉर रिवैल्यूएशन। 5 को वैल्यूएशन करेंगे हर साल, फिर जो वैल्यू है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। नहीं, इम्पेयर्ड क्या होता है कि बहुत मतलब ऑब्वियस है कि बहुत ज्यादा लो हो गया है। बेसिक वैल्यूएशन माय डियर कविता, आपका ही एग्जांपल लेते हैं, 2 करोड़ का वैल्यूएशन था, WDV पकड़ते हैं 2 करोड़ की, चलो बुक्स में, एंड एज ऑन डेट इफ आई वांट टू सेल द प्रोडक्ट इट इज 1 करोड़, ओके। एंड ये समझो कि वो अपना जो क्या बोलते स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो मुझे 25 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो वो जो फिक्स अमाउंट है तो वो ही करना है, फिर उसको हमें वैल्यू के साथ कुछ लेना देना नहीं है। दैट वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन। और अगर हम WDV करते हैं तो हमें 2 करोड़ देन 2 करोड़ का जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस करना है, फिर उसके बाद जो वैल्यू आ गई समझो 1 करोड़ 75 लाख है और हमारा वैल्यूएशन एज ऑन डेट 1 करोड़ है, तो 75 lakhs will become my impairment loss. That was my question. नहीं, ये कैरिंग अमाउंट की बात कर रहे हैं अपन, नॉट दी WDV वैल्यू। कैरिंग अमाउंट जो है ना अपना, कैरिंग अमाउंट मींस बुक्स में एसेट साइड पे हाँ, कर रहे हो तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट हो जाएगा, ग्रॉस एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द लायबिलिटी साइड दिखाते रहेंगे आप, ओके। नहीं तो ये स्ट्रेट लाइन के लिए भी रहेगा और WDV, हाँ, मतलब लॉस तो जब आपका वैल्यू कम हुआ है फिक्स एसेट्स का तो वो किसी का भी हो सकता है ना, मेथड आपका कोई भी हो डेप्रिसिएशन का। बट एक्चुअल सी कैरिंग अमाउंट में भी सी 2 करोड़ मैंने एसेट साइड पे लिखा है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 करोड़ है भी समझो क्रेडिट साइड में, तो मेरा एक्चुअल वैल्यू ऑफ द बुक में भी 1 करोड़ ही है, तो इम्पेयरमेंट लॉस इज नॉट एप्लीकेबल, नो। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। हाँ, राइट। ओनली उसका नेट जो है वो उससे भी कम हो गया आपका, हाँ, नेट वैल्यू जो है उससे भी कम हो गया, तो फिर आपको वो भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा। मतलब हमें क्लाइंट के साथ बैठ के समझना पड़ेगा उसका वैल्यूएशन क्या चल रहा है उसके एसेट्स का, वो आज तक हम कभी कर नहीं रहे थे टेक्निकली। अच्छा, ये एप्लीकेबल टू ये चीज अभी कोविड में बहुत होएगा, ये सबको एप्लीकेबल है, ऑल लेवल्स 1 2 3 4? नहीं, इसमें भी है, इसमें ये दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू माइक्रो को नहीं एप्लीकेबल है, ओके। इट इज ओनली एप्लीकेबल टू मीडियम, ओके, लार्ज एंड मीडियम। लार्ज को तो सब सब एप्लीकेबल है, इसलिए लार्ज एंड मीडियम बोलना पड़ेगा ना, लार्ज का तो सब कुछ ही है। अच्छा, और नाउ सेकंड जो अभी आप बता रहे थे कि इस साल मैंने उसको ड्यू टू कोविड उसकी प्राइस कम हो गई थी, अब थोड़ा सेटल होने लगा, अब मेरी प्राइस अपवर्ड रिवीजन में गई समझो, हाँ। दिस इज एज पर बैलेंस शीट डेट, वैल्यूएशन एज पर बैलेंस शीट डेट में हमें वर्किंग कर लेने का कि क्या है करके, और यानी इस साल का मेरा इम्पेयर्ड लॉस ये है, अगले साल हम वापस रीअसेस कर लेंगे इसको। हाँ, बट दैट विल नॉट अफेक्ट माय डेप्रिसिएशन काउंटिंग। डेप्रिसिएशन नहीं होगा, उसके ऊपर आप डाल रहे हो, इट इज additional, and you have to specifically say that this is impaired loss, so that when a balance sheet is read they know कि this is due to the impaired loss. मतलब बहुत फेयर वैल्यूएशन हो रहा है। हाँ, ट्रांसपेरेंसी आ रही है। हाँ, अब एक्चुअली हिस्टोरिकल कॉस्ट से धीरे धीरे वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मोर रियलिस्टिक वैल्यूएशन। रियलिस्टिक एक्चुअली दैट्स सी इन द IFRS and ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नाउ ऑल ऑन फेयर वैल्यू, बट अपने यहाँ पे क्या होता है, इतना अभी एडवांस्ड नहीं है, तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर स्लोली मूविंग टुवर्ड्स इट। उतने वैल्यूअर्स होना, उतना ये अवेयरनेस होना, तो इवन सी कंपनी लॉ में भी वी हैव नॉट डायरेक्टली गॉन टू IFRS, वी आर गोइंग टू इंड AS एंड देन विल गो टू IFRS एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बिकॉज एकदम से because the system of accounting is different, the style of working is different, तो एकदम से हम वैसा नहीं कर सकते हैं, but they are given, you see, अब even fixed assets में भी उन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप रिवैल्यूएशन मॉडल भी यूज कर सकते हो, ओके, यस और नो। अब इसमें क्या है,
एक और कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड दी कैश जनरेटिंग यूनिट, CUG। TGU. जैसे बड़ी आपका बड़ा सेटअप है, तो कभी कभी क्या होता है, कोई एसेट अपने आप में एक एसेट नहीं होता है, बट एक ग्रुप ऑफ एसेट्स मिलके एक एसेट होता है जो अपने आप में कैश जनरेट करता है, राइट? तो वो मोस्टली जैसे सेगमेंटल अकाउंटिंग होता है ना, तो उसमें होता है डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि वो वाली भी एसेट्स अगर इम्पेयर्ड हुए हैं, वो यूनिट अगर इम्पेयर्ड हुआ है, तो वो भी डिस्क्लोज करना है। बट दिस कंसेशन इज गिवन टू MSME। सी व्हाट दे हैव सेड इट, दैट आपको जो इम्पेयर्ड लॉस है उसको डिस्काउंट नहीं करना, बिकॉज नॉर्मली लार्ज एंटिटीज को आपको इसको फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा। ये जैसे मैंने पीछे बताया ना, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे क्या बोला है, इफ द रिकवरेबल अमाउंट is less than your carrying amount, impaired loss needs to be accounted for, right? And what is recoverable amount? Recoverable amount is what is to be, which is saleable amount. And net realizable value is the sale price less whatever cost is taken. और एक होता है value in use, मतलब what is the present value, what is the present value of your future income from that asset. बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो सेकंड थर्ड वाला पॉइंट है ना, तो भगवान ही जाने, अभी वो 20 दिन में लॉकडाउन आता है, मैंने कैलकुलेट किया था कि मेरा होने वाला है 3 मंथ में सेल, वो बंद हो गया, तो कैसे, हाउ विल यू एस्टिमेट यार? नहीं, तो अभी आपको एक कंसेशन है कि ये जो थर्ड वाला है ना, वैल्यू इन यूज, ये चीज का कंसेशन दिया है SME को कि you don't have to give a discounted value, you can give a fair value. ये देखो यहाँ पे दिया है उन्होंने, ये लिखा है, instead of the present value technique, a reasonable estimate of the value in use can be given. Okay, and discounting rate is not applicable. We don't need to give a discounting rate. And ये जो capital कैश जनरेटिंग यूनिट जो है उसको भी अलग से डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा हमें। एंड अगर कभी अपन ने डिस्क्लोज किया और फिर बाद में उसमें प्रॉफिट आया या रिवर्स हो रहा है, इधर वे, तो वो भी हमें इतना डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा। दिस इज अ कंसेशन गिवन। ओके, देन इंटैंजिबल एसेट्स। इंटैंजिबल एसेट्स में लेवल 4 को इसमें डिस्काउंटिंग, मतलब इसमें कंसेशन मिला है। Everybody knows what is intangible assets and how it has to be recorded. So I am coming directly to what not to be disclosed, and these are the barriers which are relaxed, which are the relaxations given to level 4 entities. Is that clear? Level 4 entities, that is micro entity. That means that each class of intangible assets, there are various classes of intangible assets, right? अब आपको उसका ओपनिंग वैल्यू ऑफ दिस ईयर एंड क्लोजिंग ऐसा आपको इसमें देना नहीं पड़ेगा, जो नॉर्मली लार्ज और मीडियम को देना पड़ेगा। रिकंसिलिएशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एट द बिगनिंग and the end of the period need not be shown. Impaired losses recognized in the profit and loss need not be given. Impaired losses reversed, since आपको recognize ही नहीं करना है तो reverse करने की बात ही नहीं आती है। तो second is a very obvious thing. And enterprises are encouraged not to but not required to give descriptions of fully amortized intangible assets. अगर आपने fully amortize हो गया है तो उसका पूरा description देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ amortize कर दीजिए। ये कंसेशन माइक्रो को मिला है। ओके, एंड दीज आर द बेसिक आई हैव कवर्ड। एक किसी ने बोला था कि डेफर्ड टैक्स तो हम कभी करते ही नहीं। आई थिंक आई हर्ड समबडी सेइंग दैट हमने तो कभी डेफर्ड टैक्स किया ही नहीं है। जेपी साहब, जेपी तिवारी। हाँ, तो उसके लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगी
कि डेफर्ड टैक्स का हमें इसलिए भी बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है बिकॉज नॉर्मली हम पार्टनरशिप फर्म्स में और मिड साइज एंड स्मॉल फर्म्स में नॉर्मली हम डेप्रिसिएशन रेट एज पर इनकम टैक्स रेट रखते हैं. हम उनका जो कैलकुलेशंस है, टैक्सेशन कैलकुलेशंस है, वो भी इनकम टैक्स रेट के वैसे ही रखते हैं. कंपनी में क्या रेट आपको डिफरेंट रखना ही पड़ता है एज पर कंपनी लॉ. यहाँ पे हम तो क्या करते हैं, तो उसमें डेफर्ड टैक्स कम ही होता है अनलेस बहुत बड़ा कोई एसेट सेल हुआ है, डेफर्ड टैक्स का प्रोविजन कम होता है. इसलिए 43B रहता है ना हाँ डिसअलाउंस, तो वो सब डिफर्ड टैक्स में हाँ क्या वो होता है, नॉर्मली तो हमारा अभी मतलब देखना कम पड़ेगा. रहता है. हाँ और फॉर माइक्रो को डेफर्ड टैक्स कंसेशन है. दे कैन जस्ट शो योर करंट टैक्स एंड दे डोंट हैव टू शो डेफर्ड टैक्स. So you mean to say level 2 And level AS 2 level 2 AS11 level 2 और 3 को deferred tax दिखाना है. यस लेवल 2 और 3 को दिखाना है. और एक और चीज है कि AS11 में भी ना बहुत मतलब इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज वी डोंट हैव ट्रांजैक्शंस विद फॉरेन एक्सचेंज. वी डोंट रीड इट, बट इफ यू रीड इट, इट इज जस्ट दे आर टेलिंग यू कि विच रेट टू यूज, विच रेट नॉट टू यूज. मतलब वहाँ पे 3 टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं. एक तो होता है कि आपने कोई ट्रांजैक्शन किया और आपका कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन रेट क्या है. तो बेसिकली दे वांट टू शो यू कि कौन सा रेट ऑफ कन्वर्जन लेना है फॉर विच टाइप ऑफ आइटम. सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट वो सबको एप्लीकेबल है. उसने कंसेशन सिर्फ इतना ही, रिलैक्सेशन इतना ही दिया है कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी आपको नहीं बनानी पड़ेगी फॉर अ MSME. बाकी लार्ज कंपनीज को आपको फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बतानी पड़ती है. बट अदरवाइज फुल AS11 इज एप्लीकेबल, AS13 इज एप्लीकेबल, but they are very specific transactions which are not everyday applicable. and जिनको transactions foreign exchange transactions करते हैं वो लोगों को वो rates normally मालूम रहते हैं because they are always in the closing rate or average rate. only fixed assets का transaction rate रहता है 80% of the time. and जितना भी fluctuation loss होता है that is considered into your profit of the current year. and even आपका इंटरेस्ट कॉस्ट, जो लोन पे लिया हुआ इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो भी कैपिटलाइज नहीं होगा, वो भी आपका P&L में ही जाएगा. इतना ध्यान रखना पड़ेगा. बाकी इट्स नथिंग वेरी बिग, बहुत कॉम्प्लिकेटेड अनलेस यू आर डूइंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. इफ यू आर डीलिंग इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देन फिर उसके थोड़े बहुत प्रेजेंटेशंस अलग होते हैं. अदरवाइज इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. यानी AS11 हमने किया नहीं है, ऐसा कोई डर की बात नहीं है. सी AS11, AS7, AS19, these are very specific type of transactions related to specific businesses. So only they will be, these type of transactions will be applicable only by to them. them. मतलब then we have to, whenever now we start anything, सबसे पहला काम करना है कि कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस एंटिटी को एप्लीकेबल है. सबसे पहले उसका लेवल डिसाइड कर लेंगे 1 2 3 4 में से किस में आ रहा है. करेक्ट. हाँ वो तो बहुत जरूरी है. हाँ, decide हाँ. करना. तो आपका PPT भी शेयर कर देना हमारे साथ, वो भी बहुत Yes. जरूरी है. Yeah, I'll mail it to you or you want me to WhatsApp it to you? मुझे व्हाट्सएप कर दो, चलेगा. ठीक है. मैं इन लोगों को व्हाट्सएप. मैडम एक क्वेश्चन हाँ बोलिए. about level 3 enterprises. Yes. Turnover is between 2 to 10 CR. अभी as per recent amendments, Turnover is turnover. not between, turnover is not 2 to 10. Borrowing is between 2 to 10. हाँ, क्या मैं PP टर्नओवर Okay. का 50 से ऊपर. Turnover. एक सेकंड ये लेवल 2 आ गया ना. नहीं level 3. हाँ, level 3. लेवल 3 चाहिए. हाँ between 10 to 50. हाँ 10 Between 10 to 15. Okay. 10 to नहीं, 50 but borrow. excluding but GST and other income. हाँ बट सपोज कि एक एंटरप्राइज है जिसका टर्नओवर इज लेस देन 10 CR बट दे हैव बोरोइंग ऑफ 2 CR, मोर देन 2 CR, सो दे फॉल अंडर लेवल 3 एंटरप्राइज. Yes, and see, Let us what assume. is, see non-company entities which are not covered in L1, L2,
but fall in any one or more of the following categories, any one or more. Okay. So my question is, अभी उसका borrowing है more than 2 CR, so they are level 3 enterprise. Yes. So level 3 enterprise को सब applicable है, maximum काफी accounting standards applicable है, but since their turnover is below 10 CR, their tax audit is not there. तो उस केस में वो बैलेंस शीट विल नॉट बेयर आवर सिग्नेचर. तो Balance sheet to audit is a personal choice whether he wants. See, tax audit is a different audit. Financial So audit that is is a what- different audit. sir, that is what my question earlier was. नॉन Tax audit, कॉर्पोरेट है, नॉन कॉर्पोरेट Non-corporate. टैक्स ऑडिट नॉट एप्लीकेबल है, तो क्या करना है? तो क्या करना है? तो वही उनका तो क्वेश्चन. सपोज कि वो इसमें टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, तो ये नहीं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है वो कैसे फॉलो किया जाएगा? नहीं, मैं मतलब आपको who बता will- नहीं, देखो मैं आपको बताती हूँ. अगर आप ऑडिट कर रहे हो, that means it is he wants your books to be audited. No, if he is under tax audit, then only he will get it done. Otherwise, why he will bother? Because tax audit का ही पैसा नहीं आ रहा है 2 साल का. तो Kavita, the first question is Already. asking you that person is not under the tax audit. Then हाँ. are you going to advise them to follow, because due to borrowings that client is falling under level 3? See, ultimately what I have understood is that accounting standard applicability, we as a chartered accountant view from the audit perspective. And Kavita is trying to say, if the entity falls under that, they should follow this accounting standard while maintaining books of accounts. Of account maintaining. सी सर, आपको मैं बताऊं, आपने बोला कि चलो मैं नहीं फॉलो करता हूँ क्योंकि मैं तो टैक्स ऑडिट में नहीं आ रहा हूँ, है ना? ठीक है. और अगले साल फॉलो, अगर अगले साल ऑडिट होगा, अगले साल टैक्स ऑडिट में आएगा, चलो 4 साल बाद टैक्स ऑडिट में आएगा, आपके पास सारे रिकॉर्ड्स रहेंगे क्या? इट्स नॉट पॉसिबल. इतना डिटेल अकाउंटिंग बाद में निकालना. सी, accounting is a regular process. It's not only for compliance, it is for your own benefit, right? आज आप नहीं हो टैक्स ऑडिट में, 2 साल बाद अगर टैक्स ऑडिट में तो आओगे ना. ग्रोइंग, इट्स अ ग्रोइंग बिजनेस. नहीं, my query is from client's point of view. See, हम लोग I'm talking from client's perspective. You have to advise them that you follow these accounting standards because this is the method of accounting. आप अगर बिजनेस करते हो तो ये अकाउंटिंग आपको करनी पड़ेगी. आप यहाँ नहीं करोगे अकाउंटिंग. It is only not to submit to your department. But आज आप नहीं करोगे, कल अगर टैक्स ऑडिट में आ गए तो आपको सारे बुक्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे. तो आप मुझे बताइए, उस समय आपके पास कुछ डिटेल्स ही नहीं रहेंगे अकाउंटिंग के. और अच्छा चलो ठीक है, आप टैक्स ऑडिट में नहीं आया, बट बाकी बैंक में कभी पेपर्स देने पड़ते हैं, कभी कहीं देने पड़ते हैं, आपके पास बुक्स प्रॉपर नहीं रहेंगे. आज के डेट में यू कैन नॉट लुक एट अ एंटिटी इन अ कंपार्टमेंटलाइज कि मुझे बस टैक्स ऑडिट के लिए ही करना है या मुझे सिर्फ बैंक के लिए, लोन्स के लिए पेपर तैयार करना है. अब वैसा जमाना नहीं रहा. इट्स अ ओवरऑल एंटिटी. आपको जीएसटी के लिए भी बुक्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि आपका टैक्स ऑडिट नहीं हुआ, कम जीएसटी ऑडिट हो गया, क्या कर लोगे? आपके बुक्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करना इज अ नेसेसिटी इफ यू आर डूइंग बिजनेस एंड इफ यू आर अ ग्रोइंग बिजनेस. दिस इज कॉल्ड स्मॉल थिंकिंग. आपको आपके क्लाइंट को एजुकेट करना ही पड़ेगा. तो आप ये नहीं बोल सकते कि इसका पैसा नहीं मिल सकता तो मैं वो क्या करूंगा, तो बोला बिजनेस करना बंद कर दो. बिकॉज अगर बिजनेस करना है और ग्रो होना है तो आपको प्रॉपर अकाउंटिंग प्रॉपर रखना ही पड़ेगा. आपको कहीं से भी आ सकता है, आपको कहीं से भी स्क्रूटनी आ सकती है. आज जीएसटी से आ सकती है, आपको टीडीएस से आता है रिक्वायरमेंट्स डेटा देने का. एंड नाउ द गवर्नमेंट हैज एवरीथिंग, दे हैव एवरी नॉलेज. एक एक ट्रांजैक्शन का आपका नॉलेज है उनके पास. आप ये भूल जाओ कि मैं टैक्स ऑडिट के अंडर आ गया हूं तो मैं सेफ हेवन में हूं. आपके बुक्स को मेंटेन करना इज अ नेसेसिटी. इट्स नॉट ओनली फॉर कंप्लायंस. प्लीज 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 एजुकेट योर क्लाइंट. completely agree. ये जो अनाउंसमेंट अभी आया है ना, ये जो अनाउंसमेंट आया है ये बहुत हल्का नहीं है. दिस इज अ मतलब ये थॉट प्रोसेस है अभी गवर्नमेंट का.
या कंप्लीटली एग्री विथ यू। तो उनको वही बोलना पड़ेगा कि आप वेदर यू फॉल अंडर टैक्स ऑडिट और नॉट, गेट हाँ। द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड। और नहीं, आपको ऑडिट नहीं करना मत करो, JP मुझे जो पैसा नहीं गलत देना मत दो, करना पर आपका चाहिए। बुक्स मेंटेन रखो, और आपका बुक्स हाँ। मेंटेन रखो। और आप बुक्स मेंटेन नहीं रखोगे तो अगले साल मैं ऑडिट करूंगा तो मैं डबल चार्ज करूंगा, क्योंकि मेरे को पिछले साल का भी मेंटेन हाँ, now there you are. See, JP, bottom line you are not getting corrected. कि accounting standard means it's when I write books of accounts, I have to follow this standard. Whether Yes. I'm under audit or not, it is a secondary question. सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज लाइक अ लैंग्वेज। आज आप ग्रामर टेस्ट नहीं दोगे, इसका मतलब क्या ग्रामर कुछ भी लिखोगे क्या? द कहीं पे भी लिखोगे, अ कहीं पे भी लिखोगे, आर्टिकल को आर्टिकल की जगह लिखना पड़ेगा, नाउन को नाउन के साथ लिखना पड़ेगा, फुल स्टॉप को फुल स्टॉप की जगह लिखना पड़ेगा। दीज आर द रूल्स ऑफ राइटिंग द कमर्शियल लैंग्वेज। तो आपको उसको वैसा ही प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। अभी तक के कंपलसरी नहीं था, इसलिए हम थोड़े चीजों को लेट गो करते थे, अब वो कंपलसरी हो गया है। तो हम, और चलो आप टैक्स ऑडिट के अंदर नहीं आ रहे हो तो इस साल नहीं आओगे, पर कभी ना कभी तो आओगे ही ना। फिर क्या होएगा? फिर आप कैसे बुक्स को मेंटेन कर पाओगे? अभी तो मैं बता रही हूँ फिक्स एसेट्स का ही ठीक करने में इतना टाइम जा रहा है। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन इज, हम लोग को टैक्स ऑडिट में अगर वो फॉल नहीं करेगा तो अल्टीमेटली if our effort will not be remunerated properly. so you So don't that audit is ना। what- नहीं, वेरी सिंपल। टैक्स ऑडिट में नहीं आ रहा, यू डोंट डू द ऑडिट। बट वो जिस दिन ऑडिट के लिए तुम्हारे पास आएगा, तुम उसको बोला कि मैं डबल चार्ज करूंगा क्योंकि मैं पुराना बुक्स को ठीक करना पड़ेगा ना। That is what correct. Don't do anything for free. Yeah, they that don't is want what, to because maintain- इतना सारा हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो but करके आपको- उसका बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे नहीं, and बनाओ will not मत। be. वो पैसा नहीं दे रहा है तो बनाओ मत, पर उनको ये भी बता दो कि आपको जीएसटी के लिए भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। Correct. कहीं से भी टीडीएस से भी आ सकता है। सीनियर, हमारे एक सीनियर सीए का कंसर्न है कि क्लाइंट विल गो, सी क्लाइंट विल नॉट गो एनीवेयर, अंडरस्टैंड। वो आपको छोड़ के दूसरा सीए के पास ही जाएगा, वो आपका ही जान पाए। तो ये हम लोग ये जो चाय पे चर्चा कर रहे हैं, आज डिस्कशन फोरम्स में हम बात कर रहे हैं, ये फेसबुक लाइव जा रहा है, हमें ये मैसेज देना है कि लेट्स बिजनेसमैन अंडरस्टैंड दैट गवर्नमेंट वांट्स गुड कंप्लायंस, यू नीड फेयर कंप्लायंस, you need a chartered accountant in your life, not only for audit but business valuation, understand, support, account, whatever. In fact, I am so thankful to Kavita that myths have cleared. It's not necessary कि audit है तभी आपको ये standard applicable करना है, ये accounting language है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम clients को educate करें कि भैया ये standard आप लोग को applicable हो गए हैं। तो अगर मैं उनका अकाउंटिंग आउटसोर्स लिखती हूँ तो आई हैव टू एजुकेट माय आर्टिकल क्लब कि भैया ये स्टैंडर्ड्स इन क्लाइंट के बुक्स मेंटेन करने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है, एंड हैव अ डिस्कशन विद द क्लाइंट, मेक देम अवेयर दैट दिस मच वॉल्यूम आई विल बी एक्सपोज्ड टू एंड दिस मच चार्जेस विल कम। आप अभी मुझसे छूट के चले जाओगे तो कल दूसरी जगह पे वो बढ़ के ही प्राइस आने वाली है। तो we have to all taken together, all professional brothers and sisters have to take this effort to educate the businessmen कि भैया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऐसा बोल दिया है 44AD में 2 करोड़ के नीचे 8% डिक्लेयर किया, नो बुक्स ऑफ अकाउंट, बट 2 करोड़ के नीचे है, जीएसटी नंबर है, तो जीएसटी असेसमेंट के टाइम पे आपको बुक्स तो होनी ही चाहिए। और कोई भी आदमी, मैं तो बोलती हूँ ये मिथ है, ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए, डोंट कीप बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो वर्ड निकाल देना चाहिए, वी विल नॉट डू स्क्रूटिनी, ऐसा वर्ड उन्होंने यूज करना चाहिए। सी गवर्नमेंट शुड नाउ अमेंड द लॉ दिस वे कि 44AD में वी विल नॉट कम फॉर ऑडिट, बट मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो होना ही चाहिए। विदाउट बुक्स आप कहाँ खड़े हो आपको खुद को मालूम नहीं है, तो आप बिजनेस क्या करोगे आगे चल के? एग्जैक्टली ग्रोथ नहीं होगा, इट विल नॉट बी। एक्चुअली 44AD अननेसेसरी यूज करने की मतलब ही नहीं, वो एकदम माइक्रो एंड स्मॉल जिनका बहुत प्लेन एंड सिंपल ट्रांजैक्शन है, उनको उनके ऊपर बर्डन नहीं डालने के लिए वो प्रोविजन है। बाकी अगर इफ यू आर टेकिंग अ 2 करोड़ एंड प्लस लोन, दैट मीन्स वो इतना पैसा लिया है तो कुछ ना कुछ आप ट्रांजैक्शन ही करोगे ना। 2 करोड़ का अगर आपने लोन लिया है, 2 करोड़ का लोन मिलेगा, ऐसे ही 2 करोड़ का लोन लेकर उसमें कोई इनकम ही नहीं करोगे तो कोई मतलब वो 2 करोड़ का लोन का कोई मतलब ही नहीं है। तो जिसकी हैसियत है 2 करोड़ का लोन लेने की, तो वो ट्रांजैक्शन करेगा ही।
ये मान के चलो। और अगर वो बचा रहा है वो इधर उधर से, तो वो बोलते हैं ना पेनी Wise and pound foolish. वाइज पाउंड फुलिश, वैसी वाली बात है। आज वो बच गया आपके प्रोफेशनल फीस से, पर बाद में जाके उनको एक बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। ये तो उनको मतलब ये उनको रियलाइज करा दो। और ठीक है, आपका ऑडिट का फीस नहीं, आप बोलो कि अकाउंटिंग मेंटेन कर लो ना, हाँ, वही मैं maintain the account, don't be an auditor, but even maintaining an account is also an as important part for them. अपनी गरज नहीं है, उनकी गरज है। ये उनको समझाना पड़ेगा कि it is their requirement, it is not an additional expense, this is a necessity. आज आप जीपी डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो प्रॉब्लम डॉक्टर का नहीं है, डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, वो पेशेंट का प्रॉब्लम है। उसकी बीमारी बढ़ती जाएगी फिर उसको very important today's session. I mean this is too much important session, and thank you very much Kavita madam, this is Thank you. very very important. नहीं, thank you very much for So, remembering Yeah. me. Daman bhai, Great. we have Thank you, almost reached Kavita, the time, for your and we must valuable thank inputs. Those participants who stayed with us till we have stretched almost 2 hours. You know that? Yeah, it's almost 2 hours. Yes. Kavita, thank you for your valuable inputs. Thank you, dear. So I, on behalf of SGF and all participants, I'm asking, telling Mr. CA Disha Dodia to present a well-deserved hearty vote of thanks to Kavita Loya madam and Vanna madam also. Thank you. It was a wonderful session. Let me end this session by thanking all the participants today. On behalf of SGAF, I would like to thank Kavita madam for giving a valuable time and sharing insightful information on applicability of accounting standard to MSME. In short span of time, you have covered in detail the topic very nicely with presentation, and I'm sure it will help our audience at large. I would like to thank Vandana madam for arranging series of Chai Pe Charcha. And I really appreciate the energy and enthusiasm of Vandana madam for arranging series of such a nice session to empower and educate our audience on different subjects. Like today, it was MSME sector. Thank you, Vandana ma'am. It was one more great session on Chai Pe Charcha, and look forward all the colleagues to participate in upcoming sessions. Thank you all. The next session is on 18th now. Thank you. Kavita, from Thank you. See, Nagpur coming to Mumbai. Abhi, Yes. This is the benefit of COVID. वही मैं बोलती हूँ, मैं Yes. हमेशा COVID को thank you बोलती हूँ कि उधर all भी over remote- India में सेशन ले सकते हैं अभी अपन, मतलब all अगर- anywhere in the world. अगर ये कोविड नहीं होता ना तो हम कविता मैडम को सुनने का मौका नहीं मिलता। नहीं, सही बात है, हमें भी आपके साथ मिल बात करने की। अभी जो सेशन होने वाला है 18 तारीख को है, अर्चना यादव इज द स्पीकर एंड शी इज एक्सपर्ट इन जीएसटी। हम लोग वाह। जीएसटी के ऑब्बिट क्वेश्चन मतलब केस स्टडीज लेंगे, क्वेश्चन आंसर ही रहेगा हमारा। एंड 1 अगस्त इनकम टैक्स वेबसाइट पे लेने वाले हैं, लाइव वेबसाइट। 25th आई एम स्टिल थिंकिंग who can bridge in, you know, so open forum is available, anyone want to share? 25th. Hello, bye then. बाय चलो, बाय, bye, थैंक यू मैडम, everyone. It was a very थैंक यू interesting- मैडम, Okay, bye. बाय थैंक यू मैडम। Thanks, Disha. Thank you. Bye. Thanks, Daman bhai. Bye.